recording. सर ये फाइल आपने प्रोवाइड की हुई है ऑलरेडी या ये? जी ये you have to go to this folder sales assignment में you have to go to this hands on और उसके अंदर sales assignment में I just uploaded both of them right now. Cleaning up जो पहले upload की थी वो different है from the one I uploaded right now. और sales dirty I'm just gonna show that to you. ओके सर ये जो सेल्स डर्टी है ये वही वाली है जो असाइनमेंट वाली है? हाँ मेरा ख्याल में वही वाली है, मुझे याद नहीं आ रहा असाइनमेंट का इस वक्त। अच्छा चले सर, मैं जो आपने अभी जो दिया है ना मैं वही अगर वो है भी तो इसके अंदर उसको एनालिसिस का जो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि इसमें हमें चीजें चेक करनी है, एनालाइज देम सेपरेटली। अच्छा इसके अंदर व्हेन यू ग्लैंस एट इट द फर्स्ट टाइम तो पहली चीज ये होती है रैंगल करने में कि you guys have to understand के you know the data you get is a single sample. ठीक है, any file you get in which you have to do business intelligence or machine learning or data warehousing, whatever, that is just a single sample of the whole population. ठीक है, so for example a sample of data, a sample of customer transactions of the last 6 months. So you can say that's the most recent sample, so you can say that's the most reliable sample. ठीक है, लेकिन it could be true that your sample might be biased because of some unexpected occurrence like for example COVID or you know there was some problem from your client, तो एकदम से payments रोक दी गई. You never know, so this sample might be biased, it might not represent the true distribution of the data जो कि actually आपकी होती है. ठीक है, तो उसके there are two solutions to that. One is that you take a large sample, so typically you go for 3 years to 5 years. Or the other thing is that you take multiple samples. If you want to keep a small time period. Yeah, this is especially true in real-time data. Okay, in real-time data, I can't go for things like 5 years or 3 years. E-commerce transactions are changing very frequently, So 6 months is pretty good in my opinion, or at the most you can go for 1 year. But again, that sample might be biased, So the point you have to understand is कि ये जो चीज आपको सामने नजर आ रही है, the thing that you see, this sales file that you see here, you might think that this is the best way to do, this is the best data for doing predictive analytics or machine learning, but that might not be true, right? So सबसे पहली चीज है you have to understand your own limitations when you start to analyze the data, and the limitation is that this sample might be biased. Okay, so आप इस पे t test लगा रहे हैं, nova test लगा रहे हैं, correlation analysis कर रहे हैं, box plots बना रहे हैं, you're feeling confident that everything is going fine, but when you do that on another sample, then things start to change, and this will happen. Okay, so हमारे यहाँ ये होता है कि whenever you get the data, then you have to get the data for at least 3 years. That seems to be quite reasonable sample to take to understand कि भाई क्या है. अच्छा, if you have demographics recorded, then you have to keep in mind that you have to take the data for all the demographics. यानी आपकी जो कंपनीज होती हैं उन्होंने टिपिकली अपनी क्लस्टरिंग की होती है कस्टमर्स की, डिपेंडिंग ऑन के मेल फीमेल हैं या आई डोंट नो कितने सालों से कस्टमर हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने किया होता है आमतौर पे. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो जितना आपकी एक कस्टमर की जो पूरा पॉपुलेशन है ऑफ द होल कंपनी, तो उसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुपिंग्स बनाई हुई हैं, तो यू हैव टू एंश्योर के
they are taking the sample for all the available groups that are there. So before you even sample the data, you don't feel happy when you look at the data कि मेरे पास बहुत सारा data आ गया है. Sampling is something जो कि is very critical to your machine learning application, क्योंकि उसकी problem ये होती है कि if you don't take the correct sample and you run machine learning and you generate predictions or forecasts and you deploy them in the industry, then if you have not taken the right sample, then the predictions are going to go down. उसकी accuracy खराब हो जाएगी. लेकिन अगर आपने initial sampling अच्छी की है, भारी की है, बड़े data set पे की है, big data पे की है, then it is quite likely that you are going to generate a very confident interval of prediction. Your predictions are going to be, in a very good confidence range. So you have to understand that the sample might not be true. Okay. So whenever you start some industrial project, even BI का project अगर हो, तो कम से कम 3 से 5 साल के हम बात करते हैं. अगर जब हम डेटा वेयर हाउसिंग 1980s में करते थे, 1990s में करते थे और इवन 2000s में करते थे, तो we used to talk about 10 years, even 10 years. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हुआ ये है कि I do think the companies have data recorded since the last 5 years in a very good way. 10 years might not be true, right? अगर मैं किसी कंपनी से कहूँ पाकिस्तान की कि 2011 से डेटा ले आओ, तो they might not have the data जो कि पिछले 5 साल का हो, वो 10 साल पुराना डेटा होगा नहीं. Okay, so you have to understand your limitations, and then you have to sample according to that, because as a data scientist they will be asking you how much data you need. They don't know even 1% of what you want. ठीक है, the IT guys. So आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे कम से कम 3 साल का डेटा चाहिए. अच्छा, वो कहेंगे भाई आप ऐसा करें, आप आके देख लें, आप आके डेटा देख लें. तो then you have to go and see कि डेटा क्या है. फिर आपको उनसे सवालात पूछेंगे, भाई आपका कस्टमर का टेबल कहाँ है, कस्टमर की आपने ऑलरेडी कोई CRM एप्लीकेशन डिप्लॉयड है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में कम से कम CRM का काफ़ी काम होता है. So if they have already done CRM, then you have to sample according to the CRM. You don't have to sample according to what you want, 3 साल या 5 साल या 2 साल. You have to sample according to the customer groupings उन्होंने already की हुई है. So all of these things are those things जो कि आपको लिख लेनी चाहिए और उसके मुताबिक आपको you have to be very cautious about it. डर के चलना पड़ता है कि am I taking the right sample or not? Okay, so the data, the data might be pretty good. This data is क्या कहते हैं, ये आपको लग रहा है कि भाई sorry about that, here all the drawings. या आपको लग रहा है कि ये डेटा बड़ा मजे का है और everything seems good, या आपका शिपिंग का बड़ा रेगुलर डेटा है, but again this might not be the right sample. So how many rows do we have? We have around 8300 rows. सही है. So when you get, अच्छा बाज़ ऐसा होता है कि when you get the sample, then they say कि everything is not available right now. That might also be true. ठीक है, कि वो कहेंगे कि अभी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी हमारे पास थोड़ा सा डेटा है, वो आप ले लें, बाकी हम करेंगे. तो यह दिस कैन आल्सो हैपन कि इंक्रीमेंटली आप जो डेटा है उसको आप जो है वो क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटली आपको डेटा मिलेगा. ये भी एक चीज हो सकती है. बहरहाल समरी ये है कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द सैम्पलिंग प्रोसेस. ठीक है, कि आपको जो डेटा मिल रहा है क्या वो सही. अब आमतौर पे क्या होता है कि कैगल के जैसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं. So what they do is के they just give you the data and say कि इस पे learn करो. But the point is कि you can make predictions from the data, but that might not be applicable to the future. सही है, तो you never know कि वो जो आपको sample दे रहे हैं वो biased sample है या unbiased sample है. ठीक है, ये कभी भी पता नहीं होता. और ये वो चीज़ है जो कि data scientist को बर्दाश्त करनी पड़ती है, because you can't get everything from the IT department all the time. ठीक है, there are कुछ डेटा ऐसे जो आपको कभी मिलेगा ही नहीं. सीधी बात है. तो फिर प्रोजेक्ट करने का भी फायदा नहीं होता. लेकिन आपको चूंकि शौक होता है और आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, तो आप कहते हो नहीं यार मुझे 2 लाख का प्रोजेक्ट मिल रहा है, मैं कुछ ना कुछ तुमको करके दे देता हूँ. हालांकि फायदा कोई नहीं होता उसको करने का. असल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग आगा खान के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, शायद मैंने आपको बताया भी था. तो डेटा जो उन्होंने हमें दिया वो बेसिकली ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस वो हमसे कोर फाइनेंशियल डेटा वो शेयर नहीं कर सके, बिकॉज दे हैव देयर पॉलिसी. ठीक है, तो दे शेयर द डेटा
जो कि हमारा 100% रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था। तो हमने उसमें मशीन लर्निंग कर दी, उसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगाए, बूस्टिंग लगाई, ये लगाया, वी फिगर्ड आउट द बेस्ट एल्गोरिथम। लेकिन वही एज वी डिड नॉट हैव द नंबर्स, तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ उनके लिए कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। आई मीन जिस हद तक उन्होंने हमें दिया है वो तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। तो यू हैव टू गो विद द लिमिटेशंस ऑफ द कंपनी एज वेल। सही है। तो एवरीथिंग इज नॉट रोजी कि मुझे पाइथन आ गई और मुझे मैं डेटा साइंटिस्ट की सर्टिफिकेशन ले ली तो मैं बन गया। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी कि आप उसको आउटपुट तक लेके जाना वो एक बहुत मुसीबत का काम होता है। ठीक है। बहरहाल, अच्छा, the first thing you do when you look at the data, typically you will get a CSV Excel file or you will get a database snapshot. तो बेहतर ही होता है उसको पहले एक्सेल में लाके ना थोड़ा सा उसको देख लें आप before you put that into Python. Okay. So I'm looking here and I can see that I have this row ID, order ID, and in the order date I have a mail entry. So that seems to be an error जो कि I don't want. ठीक है। और then I see के I also have some missing values. तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। I got some missing values here. और उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी में मिसिंग वैल्यू खैर नहीं है। then but I have again things like customer name के अंदर एक नंबर है। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स ना, ये टिपिकल प्रॉब्लम्स है जो कि आपकी कंपनी के डेटा में आ सकते हैं। ठीक है। दिस इज नॉट अनहर्ड ऑफ इन दी डेटा, ये होता है और इसको आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये आपके प्रोडक्ट नेम्स हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नेम्स, प्रोडक्ट कंटेनर, और ये शिपिंग डेट में कुछ वैल्यू है जो कि यहाँ पे मिसिंग है, प्रॉब्ली समथिंग C2+7 हुई है। ठीक है। तो देयर सीम टू बी सम बिग प्रॉब्लम्स हियर। ठीक है। तो ये देखें, सारा डेटा यहाँ पर मिसिंग आ रहा है, प्रोडक्ट नेम्स का डेटा मिसिंग आ रहा है, और I have around 8300 or 8400 rows and I have around 20 columns. So 20 columns हैं, ये हैं। Now the first thing you do is that what is the problem you are solving? So can you tell me, anyone of you tell me कि by looking at this data, what is the problem that you want to solve with regards to the sales business? जिसका knowledge आप सबको है, तो क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इस डेटा के थ्रू? अच्छा, ये एक और बात याद रखिएगा कि प्रॉब्लम्स भी आपके 2 या 3 किस्म के हैं। एक तो BI लेवल प्रॉब्लम है, which is more or less equivalent to a data warehousing problem because BI is an evolution of data warehousing. ठीक है। And the other problem is obviously related to machine learning. ठीक है। And the third problem is related to deep learning, which is also making its way into the industry. And this is for more complicated data like जिसमें आप कह लें कि images हो गए, वीडियोस हो गई, स्पीच, सोशल नेटवर्क डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये उसमें ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है। बट इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस, और उसका जो एल्गोरिथम है वो LSTM एल्गोरिथम इज वन ऑफ द मोर फेमस एल्गोरिथम्स फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस, which has outsmarted all the वो जो एरिमा का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? हैव यू हर्ड ऑफ एरिमा? Spell, sir? Sorry? Can you spell it? Arima models. Oh wait, yes, I have heard. I've seen this. Arima models. इसमें I think analysis of. So they are very ancient forecasting models, statistical models. Very ancient. I mean, like maybe 60-70 years back, ये technology develop हुई थी, लेकिन it is still in use. It is still in use in all the statistical tools, and it is very famous and very useful. लेकिन there have been several papers जो मैंने देखी हैं जिसमें जो deep learning, which is all deep learning is actually, you can call it machine learning 2. Machine learning part 2 is deep learning. Okay. So उसके अंदर भी Arima models, they have outsmarted, LSTM has outsmarted the Arima models in most applications because it is able to learn the patterns in a better way. So अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या problem solve करें, you have to basically, the problem comes from the business side. The business knowledge will tell you what's the problem, और फिर आपको उसको मैप करना होगा, मैं इस प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करूं, इससे सॉल्व करूं, इससे सॉल्व करूं।
So simply by looking at this data, जो कि sales का data आपके सामने है, what is the conclusion that you can make regarding the solution of the problem? कौन बताएगा? अमार try कीजिए. Sir, what I would try to solve is कि हमारे कौन से level of sales पे profit negative आ रहा है. Sorry? हमारी sales और profit की relations में निकालने की कोशिश करूंगा because हमारे कौन से sales में negative profits मिल रहे हैं हमको. नहीं, that might not be the correct. देखें, whenever you analyze, sir, the factors. Sorry? So the factors that can increase the sales. The factors that can increase the sales. Yeah, you can say कि किन situations के अंदर आपने BI का course तो पढ़ा है ना अभी? Have you guys have done the Yes. BI course, right? So Yes. what is BI? I mean BI through the use of interactive charts, BI can tell you कि KPI की value ये क्यों आ रही है. It allows you to drill down, right? Through things like ribbon charts and Sankey charts and heat maps and tree maps and bar charts. You can actually find out the reason कि ये जो KPI की value आ रही है वो क्यों आ रही है by drilling down operation. That's the purpose of BI, right? So आप कर सकते हैं. Yes, that is one thing जो कि one possible analysis which is there. और इस डेट पे हमारे ऑर्डर्स जो हैं किस मोड के ज्यादा थे किस मंथ के अंदर, तो हम वहां पर फोकस करें अपनी इंप्रूवमेंट के लिए. हाँ, that's again a BI problem to solve कि कौन से मंथ में आप किस डायमेंशन के साथ आपके ऑर्डर ज्यादा हैं और किस डायमेंशन के साथ. आपको डायमेंशंस का तो पता चल गया होगा ना, डायमेंशंस एंड फैक्ट्स. सर ये डायमेंशंस एंड फैक्ट्स है, मतलब शिप मोड यहाँ पर आ रहा है, इस फाइल को मैं देख रहा हूँ तो मैं वहां से देख रहा हूँ. रेगुलर एयर है, डिलीवरी ट्रक है. मतलब BI के कोर्स में आपको इसका नहीं बताया. क्या नहीं बताया सर? बताया तो होगा. फैक्ट्स एंड डायमेंशंस नहीं बताया. बताया है ना, ये तो बेसिक. Dimensions का बताया था उन्होंने. हाँ. Layers. तो इसमें सिंपल ये है कि फैक्ट्स आर एक्चुअली योर KPIs जिनको आप मेजर्स भी कहते हैं. And dimensions are variables across which you measure the facts. That's it. तो उसमें टाइम आ जाता है, डेट आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट आ जाता है, कस्टमर का टेबल, कस्टमर का पर्सपेक्टिव आ जाता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एयरलाइन एनालिसिस देन फ्लाइट का आ जाएगा कि फ्लाइट्स के क्रॉस में टोटल सेल्स को मेजर कर सकता हूँ, कौन सी फ्लाइट में ज्यादा सेल्स दे रही थी. तो दैट्स जस्ट द वे ऑफ लुकिंग एट BI, यू नो. तो जो आप लोग बात करें दोनों वो बिल्कुल यही है कि यू एनालाइज द फैक्ट्स अक्रॉस द डायमेंशंस. ठीक है, व्हिच डायमेंशंस लीड मी टू हायर सेल्स, यानी कौन से प्रोडक्ट्स मुझे ज्यादा सेल्स देंगे, कौन से कम दे रहे हैं. तो यस, ऑल ऑफ दिस इज BI. और कोई टेंजिबल प्रॉब्लम आपके ज़हन में आ रहा हो? सर डाटा में जो इरेगुलरिटी है, जो मिसिंग डाटा है वो तो रैंगलिंग का है ना, वो तो रैंगलिंग का प्रॉब्लम है. दैट हैज टू बी डन बिफोर एनी टाइप ऑफ एनालिसिस, चाहे वो BI हो चाहे मशीन लर्निंग हो. फर्स्ट यू हैव टू रैंगल द डेटा, बट बिफोर रैंगलिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ. एक्चुअली आप लोग जो बात कर रहे हैं वो you have to convert that to a problem. डिस्काउंट की अगर मैं देखूं कि डिस्काउंट मैंने किस प्रोडक्ट पे अपना ज्यादा रखा हुआ है, हायर रखा हुआ है, और अगर मैं इसको अप एंड डाउन करता हूं तो इससे मेरी क्या सेल्स पे फर्क पड़ जाएगा. Yeah, that's also something जो कि आप ऐड कर सकते हैं. If you ask me, then I will ask I have the data for the क्या कहते हैं, I have the data for the shipping date. Sorry about that. I have the data. Let me see. एंड प्रोडक्ट कंटेनर में भी देख सकते हैं कि 40 फीट कंटेनर, 20 फीट कंटेनर, बड़ा कंटेनर, छोटे कंटेनर में क्या. हाँ, मेरे पास शिपिंग डेट है. I have the shipping date and I have the order date. So I have the order date and I have the shipping date. So I can find out के which are the products जिनकी ये जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है.
राइट, कि ऑर्डर किया गया और शिप किया गया तो बीच में लैग आ रहा है, तो दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग एट माय एंड, सो आई वांट टू डिस्कवर कि व्हाई दैट इज हैपनिंग. इन फैक्ट द प्रॉब्लम कुड बी दैट some of my deliveries are getting delayed, ठीक है, leading to increased customer dissatisfaction. So इसकी वजह से डिस्काउंट भी तो बढ़ता होगा, बाद में डिस्काउंट भी देना पड़ता है अगर हम लेट कर रहे होते हैं काम तो. ऑफ कोर्स देखिए, देयर कुड बी मैनी फैक्टर्स, जैसे टैक्सेशन है और आपके इंटरनल लॉजिस्टिक्स हैं, छुट्टियां हैं, स्ट्राइक्स हैं, बट ओवरऑल द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज हैपनिंग. ठीक है, तो दिस कुड बी द सोल प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैं डेटा एनालाइज कर रहा हूँ. हो सकता है बीआई से आपका मसला हल हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है. बहरहाल लेट अस टेक दैट एज द वर्किंग प्रॉब्लम. अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो बड़े सीज दैट यू नो द डेटा कंटेन्स एरर्स. तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि यू ब्राउज थ्रू द कॉलम्स, दैट्स व्हाट यू डू, एंड देन यू सी कि कितनी रोज है मेरे पास, एंड देन यू ट्राई टू सी विजुअली के डू आई हैव सम एरर्स. यू ट्राई टू विजुअली सी दैट. कुछ चीजों के आप वो निकाल लेते हैं. यू कैन सी के प्रॉफिट नेगेटिव में भी जा रहा है, जैसे अमार ने कहा है कि आई फाइंड आउट द एसोसिएशन बिटवीन द यूनिट प्राइस एंड द प्रॉफिट. दैट्स आल्सो गुड थिंग टू डू के which type of sales data is leading me to a negative profit. So I can make the box plot of both of them and compare them together, for example. ये चीज मुझे समझ में आती है. फिर मेरे पास एक डिस्काउंट का भी ऑप्शन है, तो दैट इज प्योर बीआई लेवल डेटा जो कि मैं यूज कर सकता हूँ. और देन आई हैव डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, प्रोडक्ट सेगमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो मुझे एरर्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज नजर आ रही है. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज टू एड्रेस दोस एरर्स. तो फॉर एग्जांपल शिपिंग मोड में सर वन क्वेश्चन है. सॉरी सर एक सवाल था आपसे. यहाँ पर जो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक ऑर्डर क्वांटिटी, सेल्स, डिस्काउंट, यूनिट प्राइस, इसका अंडरलाइंग हमारे पास हमें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज आई बिलीव कि ये डेटा ऐसा है जिसके दरमियान रिलेशनशिप बहरहाल होना चाहिए. लाइक आपका प्रॉफिट इन चीज़ों से निकल आना चाहिए कि क्या सेल्स थी, यूनिट प्राइस क्या थी, डिस्काउंट क्या था, और यू थिंक वी आर नॉट सपोज्ड टू क्वेश्चन दैट? देखिए, absolutely you are right. In fact, the point is कि there are two stages, right? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि there are two stages, बल्कि there are several stages. The first stage is obviously the sampling one. ठीक है, the second stage is the उसको आप कह लें bird's eye view, which you are doing right now. Okay, क्या है डेटा, कितना है, just looking manually through the eye. Or the third thing is obviously cleaning. Cleaning में missing value analysis होता है और data entry errors होते हैं जो कि आपको fill करने होते हैं. Type casting भी एक चीज होती है. You need to change the types of certain columns and outlier detection. ठीक है, और क्या कहते हैं, remove unnecessary data. There might be columns which you don't need, so you just remove them from the analysis. ठीक है, उसके बाद it's the EDA part. Like I mean, you conduct those t-tests, ANOVA tests. You conduct the correlation analysis. You make bar graphs जैसे कि आप BI में बनाते हैं. At this point of time, you can take your data to a BI tool and analyze that before making predictions, right? But you can do all of that in Python as well. Although it's not a BI tool, it's not very interactive as compared to Power BI, for example. और Python में फायदा ये है कि you can do this t-test and ANOVA stuff, and also Pearson correlation analysis, and you can also make scatter plots, you can also make bar plots, you can make pie charts, etc. So this thing, all of this you can do based on some obviously questions जो कि आप ask करेंगे. जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं. Now this comes actually from the coming from the business knowledge. सर For example, आप में से जिन लोगों को sales का process पता है, they can analyze this data much better than me. कि यार ये इस shipping board के साथ ये चीज करके देखनी चाहिए, वो ये चीज करके देखनी चाहिए. So that's the first thing that in fact you need to do. So I'll just put this as point 0.
that you need to get the background knowledge in place. सर मेरा एक सवाल था सर, ये यही वाली फाइल आपने दी थी होमवर्क के लिए भी? जी जी। तो सर ये इसके अंदर मैंने ना ये टी टेस्ट और अनोवा टेस्ट से पहले मैंने बिल्कुल बेसिक से अपने कुछ ना इंसाइट्स निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रिजल्ट्स ना अनोइंगली सिमिलर आ रहे थे। यानी कि मैंने इस तरह से किया था कि सर दो जो डेट्स हैं, ऑर्डर डेट और शिप डेट, उनका डिफरेंस निकाला और उसको मैंने डेज के उसमें फॉर्मेट में, यानी कि 4 डेज 5 डेज के मैंने उसमें कर लिया। ठीक है? हेलो सर, आर यू लिसनिंग? जी 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 जी। हाँ सर, फिर मैंने टाइम डिफरेंस वर्सेस ऑर्डर प्रायोरिटी निकाला। तो जब हाई ऑर्डर प्रायोरिटी थी, जो टाइम डिफरेंस का मीन जो आ रहा था वो कुछ और आ रहा था, जब लो पे कुछ और आ रहा था। लेकिन हाई पे अगर 33 आ रहा है, 33 डेज आ रहा है, तो लो पे ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब मीडियम है तो इन दोनों के दरमियान आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहा। मतलब बिल्कुल ही ऐसे इंसाइट्स निकले थे जो कि लॉजिकल साइंस नहीं बना रहे थे। देखिए उसकी, दिस इज एक्चुअल डेटा। इनफैक्ट इसकी वजह ये हो सकती है कि आपने उस तरीके से क्लीन नहीं किया जिस तरीके से क्लीनिंग करनी चाहिए थी। there are different ways to handle the the problems in the data. मैं अभी इस तरह तो नहीं देख सकता जब तक मैं चेक ना करूं। तो लेट्स प्रोसीड अहेड और फिर उसको देखते हैं कि किस तरह ये चलता है। आई एम स्टिकिंग विद दिस एग्जांपल क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डाइवर्स डेटा है जो कि आमतौर पे नहीं मिलता आपको ना। दैट्स व्हाई आई एम स्टिकिंग विद दिस। तो आप लोगों ने पहले इस पे हैंड्स ऑन कर लिया तो इतना मुश्किल नहीं होगा। आई ब्राउज थ्रू दिस क्विकली। लेकिन अभी आप लोग जो ना उस पे पाइथन पे ना सोचें। आप जस्ट लुक एट दिस जो कि मैंने आपके सामने बात रखी है, हाउ यू एक्चुअली टैकल द होल सिचुएशन। ठीक है, पहले आप ये सारा काम करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना वो you're going to come here and do all of these things along with some questions जो कि पहले आप आस्क करेंगे। why you are conducting the t test, किन दो कॉलम्स पे t test कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अनोवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, why you are doing that just because कि वो करना है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, so you have to understand that कि what is the reason for doing these statistical test, correlation, bar analysis, etc etc। तो इसके बाद फिर जो आपकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आती है, प्रीलिमिनरी EDA रिपोर्ट है, दैट इज अ BI लेवल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आमतौर पे होता नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो दिस कैन टेल यू सो मच इंफॉर्मेशन जो कि आपकी मशीन लर्निंग में चीजों को बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटेट करेगी। अगर आप ये रिपोर्ट जनरेट नहीं करते। जी सर, मतलब आप ये कह रहे हैं देयर इज अ मतलब पाइपलाइन है, उसी के मुताबिक चलना है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस है। हाँ, देखें ये जो ऑल ऑफ द अबव इज एट लीस्ट 60% ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें BI टूल्स में बनाना, डैशबोर्ड्स बना देना वो बाद की बात होती है। रैंगलिंग में आपको सब चीजें सफाया करना होता है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने फाइल शेयर कर दी थी, लेकिन आई जस्ट वांट टू गो थ्रू दैट अगेन टू, ताकि आप लोगों को पूरा एक प्रोसेस उसका हो जाए। ठीक है, तो ये चीज सब क्लियर आ गई है? यस सर। सही है, तो लेट्स गो टू द जो आपकी वो फाइल है अब। ओके, this might seem pretty simple but I'm going to tell you much more things, many more things जो कि यहाँ पे अभी नहीं लिखी हुई। तो obviously पहला आपका काम ये होता है कि आप import the libraries। तो whenever you, this is the wrangling template जो आप लोगों ने बना लेना है। ठीक है, we're going to make the template as we go along। ठीक है, so these are the import, like typically you want to import all the libraries in the same place। ठीक है, इसमें और जो libraries आप import करते हैं वो उसमें Seaborn एक लाइब्रेरी है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली SciPy की लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है। एंड देयर माइट बी अदर्स बट these are the basic ones। ये दो तो बेसिक्स हैं, और मैटप्लॉटलिब भी है, वो तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की, लेकिन दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ओके, देन यू ऑब्वियसली रीड इट, और फिर उसके बाद दिस इज वन वे ऑफ प्रिंटिंग इट। तो इवन इफ यू राइट लाइक salesdf.shape, ठीक है, तो वो आपको शेप मिल जाएगी। So this is these are the basically rows and these are the columns, और उसकी data types मैंने print की हैं। So that's the first thing you do, right? कि आप data types देखते हैं कि Python ने इन columns को कौन सी data types assign की हैं। तो you can see for example कि order date is an object which is wrong, and shipping date is an object which is wrong, and there might be other things also which are
not appropriate, we'll see them later on. अच्छा, उसके बाद तरीका ये होता है कि just browse through the data a bit, ठीक है, तो हेड करके देख लें, टेल करके देख लें, तो यू कैन सी के यहाँ पर भी आपको वो चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी. टेल मीन्स ऑब्वियसली फ्रॉम द बॉटम, तो यू कैन डू दैट. अच्छा, अब जो सबसे पहला काम ये है कि वी हैव टू डील विद द डेटा एंट्री एरर्स, वी कैन आल्सो कॉल देम द इनकरेक्ट वैल्यूज. यहाँ पर जो अप्रोच हमने यहाँ पे अडॉप्ट की है वो ये था कि जो पहले जो डेटा एंट्री एरर्स हैं उनको मैं पहले नल से रिप्लेस कर दूं. लेट्स रिप्लेस देम इन नल फर्स्ट, और फिर आई कैन यूज द मिसिंग वैल्यू फॉर्मूला टू रिप्लेस द नल वैल्यूज. ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो जो चीजें हमें भी नजर आ रही थी जिनमें गलत डेटा हमें मिल रहा था, अगर आप एक्सेल फाइल में देखें तो बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर जो है ऑर्डर डेट के अंदर लिखा था मेल, ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट में लिखा था 35, कस्टमर नेम में लिखा था 25,000. तो आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई 3 कॉलम्स जिसके अंदर मुझे लगा कि गलत वैल्यूज एंटर की गई हैं, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट एंड ऑर्डर क्वांटिटी. ओके, तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ मेनी रोज कंटेन दीज एरर्स. हर इनमें से ऑर्डर डेट के अंदर हाउ मेनी रोज एक्चुअली कंटेन द इनकरेक्ट वैल्यूज. तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले मैंने ऑर्डर डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट किया. एरर्स इक्वल टू क्वेट्स करने का मतलब ये होता है कि इफ समथिंग डज नॉट मैच देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ NAT वैल्यू. ठीक है, तो एक चीज तो आप लोगों को पता करना होगा कि व्हेन यू वर्क विद pandas, तो pandas में null is NAT, एंड इफ यू वर्क विद numpy देन उसमें जो null है वो NaN होता है. ठीक है, एंड देयर इज आल्सो अ नन वैल्यू इन पाइथन. तो लेकिन जब pandas, चूंकि हम pandas पे काम कर रहे हैं तो इसमें जो null होगा वो NAT के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द डेटा फ्रेम्स राइट नाउ, तो दैट्स व्हाई NAT. ठीक है, तो एरर्स इक्वल टू कोर्स का जो मतलब है वो क्या होता है कि इफ समथिंग डज नॉट मैच देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इट टू क्या कहते हैं अ नल वैल्यू. ठीक है, तो मैंने किया ये है कि आई मैप द ऑर्डर डेट टू द डेट टाइम फॉर्मेट, जो कि मुझे करना ही है. ठीक है, मैं कहता हूँ एरर्स इक्वल्स टू क्वेट्स, तो ऑर्डर डेट में जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं दैट विल गेट कन्वर्टेड टू नल वैल्यूज, एंड आई सब्ट्रैक्ट दिस होल थिंग फ्रॉम एक्चुअल नल वैल्यूज जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही हैं. सही है, तो दीज आर द नल वैल्यूज प्लस द इनकरेक्ट वैल्यूज, एंड दीज आर जस्ट द नल वैल्यूज जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही हैं. तो here I have the existing null values plus the incorrect values जो भी null में convert हो गई हैं because of errors equals to queries, and here I have just the null values जो कि अगर अभी exist करती हैं तो exist करेंगी, और फिर then I print that as this affected date records के कितने records हैं जिसमें ये incorrect values आ रही हैं. I do a similar thing for the shipping date, and I do a similar thing for the order quantity. सही है, so this is just one way of looking at solving the problem. So when I run this, so sorry, what does it errors is equals to curse का मतलब क्या मीनिंग है इसमें? queries का मतलब ये है कि if in this order date column I have a value which is not a date, यानी ये देखें ये काम कर रहा है ना, I am converting this whole column to a date in the format of the date जो कि Python के अंदर है. Python के अंदर डेट टाइम का अपना फॉर्मेट होता है. तो करंटली हमने यहाँ देखा कि डेट टाइम जो है ना दैट इज एन ऑब्जेक्ट, दैट मींस इट इज टेकिंग दैट एज अ स्ट्रिंग, बट इट हैज टू गेट कन्वर्टेड टू अ डेट टाइम फॉर्मेट. So that's what I'm doing here. I'm converting that to a date time format. But if some value in order date is not a date, it's actually something else. Like for example, in our case, it's a number जो कि गलती से enter कर दिया गया है. So that value will get converted to a null value. Okay. Okay. So ये जो ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या चीज आ जाएगी, सारी नल वैल्यूज जो एग्जिस्ट कर रही हैं प्लस द इनकरेक्ट वैल्यूज जो कि नल में कन्वर्ट हो गई, उसको मैंने माइनस कर दिया नल वैल्यूज से. ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ वो एरर्स आ जाएंगे जो कि इनकरेक्ट वैल्यूज के हैं. ये सही है, क्लियर हो गई बात? अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 ये नल वैल्यू है और ये डेट 1 है, डेट 2 है. ठीक है, ये ऑर्डर डेट में फर्स्ट करें ये हो रहा है.
ये दोनों डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये नल ही रहेगा और ये भी नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट ये 1 + 1 2 हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो है वो 1 हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू टेल मी 1, दैट मीन्स कि एक आपकी इनकरेक्ट वैल्यू थी। There is just one way of or determining the number of incorrect values. You can run a function to get that. तो बहरहाल हमें पता चला कि there are not many rows. Order date के अंदर basically 2 rows हैं जो कि incorrect हैं और shipping date में just 1 row और order quantity में 4 rows हैं जो कि जिसमें incorrect values exist करती हैं। तो what I did was कि I forced it basically. मैंने उसको force किया कि आप जो है वो null में convert हो जाएं। Is that a good thing? Is that a good thing I did or not? जी नल में क्या कन्वर्ट हुआ सर? भाई मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि प्लान ये है हमारा कि अगर एक कॉलम के अंदर इनकरेक्ट एंट्री है, सही है, ये सारी डेट्स हैं और इस डेट कॉलम में लिखा हुआ है 2, तो 2 तो मैं किसी हाल में भी डेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि 2 डेट है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा प्लान ये है कि हम जितने भी इनकरेक्ट वैल्यूज हैं हम उनको नल में कन्वर्ट कर देंगे, सही है, और फिर उनको हम मिसिंग वैल्यू डील करके आगे डील करेंगे। पहले इनकरेक्ट वैल्यू तो खत्म करूं ना मैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। जिसको हम कहते हैं डेटा एंट्री एरर्स। तो प्लान ये है कि पहले आप उनको नल में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद हम मिसिंग वैल्यू एनालिसिस करके नल से बाद में डील करेंगे। इस पूरे सेल के अंदर मैंने क्या किया, आई फाउंड आउट कि आई हैड 2 इनकरेक्ट वैल्यूज इन ऑर्डर डेट, 1 incorrect value in shipping date and 4 incorrect values in order quantity, which is not much. अगर मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे 23 वैल्यूज हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, तो आप क्या करते फिर बता सकते हैं आप? अगर 23 वैल्यूज जो इनकरेक्ट है हम वैल्यू काउंट इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनको क्या करते हैं उन 23 वैल्यूज को? आई कांट, मैं 2 को यहाँ रहने थोड़ी दे सकता हूँ। डेट कॉलम में 2 आ रहा है, वो तो मुझे या तो डिलीट करना है या उसको रिप्लेस करना है। तो अगर 23 वैल्यूज इनकरेक्ट रिकॉर्डेड होती हैं इस पूरे कॉलम में, फिर आपकी क्या पॉलिसी होती है उसको डील करने की? रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? सर हम लोग रिग्रेशन वगैरह यूज करके जो मोस्ट रिपीटेड नंबर जो होगा उससे रिप्लेस करते हैं। नहीं भाई, ये डेट्स हैं, डेट में रिग्रेशन मैं किस तरह कर सकता हूँ? ये नंबर्स थोड़ी हैं, दीज आर जैसे डेट्स। कि जैसे एफ फिल होता है, इस तरह से इंप्यूटेशंस वगैरह होती हैं जो मोस्ट, वो डेट पे नहीं हो सकती भाई। डेट पे इंप्यूटेशन किस तरह करेंगे आप? सर दे आर नॉट नंबर्स। हम एक ऑप्शन ये कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर सही है या नहीं, हम एवरेज टाइम टेकन फॉर डिलीवरी के हिसाब से शिपिंग डेट के उससे कुछ सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें। अदरवाइज आई थिंक हमें वो फिर डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा डेटा। हाँ, ये आपने बात देखें, मैं डेट, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट द डेट? अगर मैं कहूँ कि यार जो जिस दिन सबसे ज्यादा सेल्स हुई है वो दिन डाल दो, बट दैट डज नॉट मेक लॉजिकल सेंस। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरी 23 वैल्यूज जो है वो इनकरेक्ट हैं, तो चलो मैंने उनको नल पहले किया, अब मैं क्या करूँ? ये इनकरेक्ट डेटा को रिप्लेस करने का तरीका यही है कि आप उसको नल में कन्वर्ट करें, उसके बाद आप उसको मिसिंग वैल्यू की तरह डील कर लें, ठीक है। अब मैं उसके साथ क्या करूँ, मतलब 23 नल वैल्यूज के साथ मैं डेट को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? तो इन माई केस, as I have 8,000 rows, so I will ask the business manager कि ये बताओ यार ये dates इसकी missing आ रही हैं, तो what should we do? तो अगर वो खुद कहता है कि भाई आप इसको फलां तारीख में कर दो, तो you can put that date and the data will align itself. Otherwise, it is better to delete, क्योंकि we can't make suppositions about the fact कि इसमें ज़्यादा जिस दिन सबसे ज्यादा सेल्स हुई हैं वो दिन डाल दो, मतलब वो तो हमारी अपनी सपोजिशन होगी ना। अगर मैनेजर कहता है यार कोई भी डाल दो, कोई मसला नहीं है, एक्चुअल डेटा तो हमारे पास है, तो फिर ठीक है, फिर आप जो सबसे फ्रीक्वेंट डेटा है वो डाल दें, ठीक है। बट यू हैव टू डिजाइन अ स्ट्रेटजी फॉर दैट अकॉर्डिंग टू योर ओन बिजनेस, ठीक है। सर मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। जब सर मैंने टाइम डिफरेंस निकाल के जब इसको शिप मोड में चेक किया ना, तो रेगुलर एयर, डिलीवरी ट्रक और एक्सप्रेस एयर में 3
मुख्तलिफ एवरेजेस आए मेरे पास। अच्छा फिर? हाँ, तो लेकिन सर मसला ये आ रहा था कि रेगुलर एयर में 70 डेज लग रहे थे, डिलीवरी ट्रक में 74 डेज लग रहे थे, यानी कि दोनों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था कि मैं कह सकूं। लेकिन एक्सप्रेस एयर में 120 डेज लग रहे थे, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है, तो उसमें तो मैं देखो, कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपने असल में बात ये है कि in this data you might need to consider 3 or 4 variables together because you have so many columns. हाँ So, सर, यही मसला आ रहा है। हाँ, ये चक्कर है ना, तो therefore this becomes a machine learning problem और a very comprehensive BI problem जिसमें आप multiple problem solve कर सकते हैं, क्योंकि BI के अंदर भी charts में आप एक चार्ट के अंदर 3 से ज्यादा वेरिएबल्स डालेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। सही है? सही। हाँ, ये हो सकता है कि आप 2-3 फिल्टर्स लगा दें और 2-3 चीजें चार्ट के अंदर डाल दें, तो देन इट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट, लेकिन फिर भी थिंग्स स्टार्ट टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो देयरफॉर दिस, आई मीन, ये तो फिर आपको ऑब्वियसली ट्राई आउट करके देखना पड़ेगा। तो थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, दैट मींस कि यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। सही है? तो आई होप कि दिस इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि as the number of incorrect values is not that much, therefore हम उसको null से replace कर देते हैं। तो वो मैंने फिर ये काम किया कि वो डेट टाइम में कन्वर्ट करके मैंने कहा कि एरर्स जो आ रहे हैं, जो चीज डेट टाइम में नहीं कन्वर्ट हो सकती, उसको जबरदस्ती आप नल वैल्यू असाइन कर दो। सेम हेयर, एंड आई डू द सेम फॉर द ऑर्डर क्वांटिटी विच आई डाउनकास्ट टू एन इंटीजर, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी जो मेरे पास आई है वो आई है ऑब्जेक्ट। ऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट सपोज्ड टू बी एन ऑब्जेक्ट, राइट? वी हैव टू कन्वर्ट दैट टू एन इंटीजर। तो वो मैंने यहाँ पे डाउनकास्ट करके इंटीजर कर दिया है, एरर्स को क्वेट्स कर दिया है अगेन फॉर दिस। और फिर मैंने सेल्स में भी अगर ये एग्जिस्ट करता है तो सेल्स में मैंने ही कर दिया। आई डोंट नो कि सेल्स के अंदर कोई एरर्स हैं कि नहीं है, लेट मी चेक दैट आउट। आई डोंट थिंक सो वैसे कि सेल्स में कोई इस तरह की कहानी, सेल्स में मिसिंग वैल्यूज तो आ रही हैं, बट आई डोंट नो कि सेल्स में कोई इस तरह का कोई इनकरेक्ट डेटा एंट्री एरर अगर है तो बहरहाल मैंने इसको कर दिया है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वेरिएबल है। और सिमिलरली अगर आप चाहें तो यू कैन डू द सेम फॉर द प्रॉफिट एज वेल, क्योंकि वो आपके क्रिटिकल केपीआईज हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई एट द बिगनिंग। आई डोंट नो कि प्रॉफिट के कॉलम में है या नहीं है, बट लेट्स अज्यूम के हैं। तो यू कैन डू द सेम थिंग, और यू कैन राइट अ फंक्शन बेसिकली जिसके थ्रू ये सारा काम आपके हो जाएंगे। ठीक है? तो ये अब आपने कर दिया। तो अब आप अगर वो चेक करेंगे सेल्स df डॉट डी टाइप्स, so now you can see that both of them are now converted to date time format. Okay. सर जी। सर आपने जो उसमें क्या था अपना डाउन कास्ट इंटीजर, तो पहले द एजेंडा वाज टू कि जितने भी इनकरेक्ट वैल्यूज हैं सबको नल कर देते हैं, बट इन दिस केस व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय डाउन कास्ट इंटीजर इन हाँ, द मतलब ये थर्ड कि वन? बेसिकली दैट मीन्स के जो जब आप ये बेसिकली इसको टू न्यूमेरिक कर रहे हैं, what I'm doing is that I'm converting the order quantity which was a string, I'm converting that to a numeric. ठीक है? लेकिन न्यूमेरिक में भी मैं उसको आई एम सेइंग कि आप उसको जो कास्टिंग टाइप है वो इंटीजर रखो, बट इट हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट, और मैं उसी की वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर क्वांटिटी को इट शुड हैव बीन एबल टू डू दैट एज अ इंटीजर। इसकी जरा हेल्प फाइल देखें, मुझे भूल गया इसमें क्या था अभी। लेट मी सर क्या किस लिए करना है? टू न्यूमेरिक डाउनकास्ट ये किया था। If not none, and if the data is any cast numerical D type, downcast is into the smallest numerical deposit according to the following rules. Integer और sign, बस वो for some reason वो integer पे वो कर नहीं सका उसको। देखिए मैं तो कह रहा हूँ उसको कि तुम numeric करो, but I have to tell it कि तुमने integer पे करना है ना। That's what I'm telling it कि कौन सा numeric? Do you want a float or do you want a or on an integer? तो ये हमारे पास ये तीन ऑप्शंस है, इंटीजर, अनसाइंड जिसमें अगर नेगेटिव वैल्यूज भी हो, सॉरी अनसाइंड विच इज द सिंपल पॉजिटिव वैल्यू, और बाकी तीसरा ऑप्शन क्या है, फ्लोट है। बट इन दिस केस वो डाउनकास्ट सही तरह कर नहीं पाया है, सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि it has not downcasted to integer, it is downcasted to still a floating value. So I will let it be
इसमें हम तरीका ये इख्तियार कर सकते हैं कि सर नुकसान क्या होगा अगर ये फ्लोट में रहे? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग होता तो फिर मसला होता, इसमें तो नुकसान ये क्या कैसे होना हो सकता है है कि आपके पास वो अलग आ रहा है, मेरे पास अलग आ रहा है? अभी जी? मेरे पास तो ऑर्डर क्वांटिटी इंटीजर में आ रहा है इस वक्त। हाँ तो फिर मेरे डेटा में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। पर उसने मेरे केस में उसको कर दिया है, फ्लोटिंग में किया है फॉर सम रीजन, जो कि उसमें डेटा में आ रही है। आई डोंट नो, इट्स प्रॉब्ली गुड, क्योंकि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग और मे बी देयर इज सम 0.5 और समथिंग, या मेरे कुछ उसमें हो सकता है कि मेरी एपीआई अपडेटेड ना हो। आई एम नॉट श्योर कि वो किस तरह से है। बहरहाल दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रहा इंटीजर है या फ्लोट है, वो डज नॉट रियली अभी इतना ओवरऑल एनालिसिस पे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वी कैन जस्ट क्लियर आउटपुट हियर। अच्छा, अब जो है ना वो देयर इज अनदर, अब ये हमारे एरर्स जो है ना डील हो गए, जो डेटा एंट्री एरर्स थे वो हमारे इन चारों पांचों कॉलम्स में हमने डील कर लिए। ठीक है, और उसको वो कर दिया व्हाटएवर जो भी है। और अब क्या है जनाब, नाउ व्हाट इज द केस, एलिमिनेट न्यूमेरिक वैल्यूज इन स्ट्रिंग कॉलम्स। अच्छा ये तो थे, ये किस में हमने थे, डेट के कॉलम्स थे, ऑर्डर क्वांटिटी विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, सेल्स प्रॉफिट। अच्छा ये हमने डील किया है बेसिकली अभी न्यूमेरिकल डेटा से एंड डेट डेटा। बट नाउ वी हैव द कैटेगोरिकल डेटा एज वेल, कस्टमर नेम एंड प्रोडक्ट नेम, जिसमें अगर आप फाइल में देखेंगे तो उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम एक लेट्स पुट इन अ रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिटेक्ट एनी नंबर जो कि एग्जिस्ट कर सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ रीजनेबल लेंथ। ठीक है, तो 0 to 9 की बेस में जितनी दफा भी रिपीट हो, दैट्स अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ नंबर इन पाइथन। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि यू गिव इट अ स्ट्रिंग वैल्यू, यू गिव इट एनी आइटम, और ये वो चेक करेगा कि क्या वो स्ट्रिंग का इंस्टेंस है, जो कि होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम जो है वो आपका क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट हुआ है। सो बाय डिफॉल्ट दे आर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो मैंने पास इट दी वैल्यू ऑफ, यानी जब मैं कॉलम पास करता हूँ तो कॉलम के अंदर वो एक वैल्यू को उठाएगा अलग से, उसको देखेगा वो स्ट्रिंग है वो तो होगी, तो वो उसको रिटर्न कर देगा अगर वो नंबर नहीं है। अगर नंबर है तो उसको वो बेसिकली नल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वही अप्रोच है जो कि हमने डेट और न्यूमेरिक कॉलम्स में की थी। सही, दिस इज जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट, आप इसको किसी और तरह से भी कर सकते हैं। तो आई क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, जो करता ये है कि अगर जो वैल्यू आप उसको दे रहे हैं कॉलम की वैल्यू, इफ इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। बट अगर उसको पता चल जाता है कि ये नंबर है तो उसको वो नल से रिप्लेस कर देगा। तो देन आई अप्लाई दिस फंक्शन टू द कस्टमर नेम कॉलम एंड टू द प्रोडक्ट नेम कॉलम। ये मैं उसको मैप कर देता हूँ। मैप में करेगा ये कि वो बेसिकली ये पूरा कॉलम उसको वैल्यू बाय वैल्यू देगा। ठीक है, ये पूरा कॉलम वैल्यू बाय वैल्यू देगा, तो हर वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन में चेक होगी। एवरी वैल्यू विल बी चेक्ड हियर। सो व्हेन आई रन दिस, तो रन कर लें फिर दोबारा से उसको देखें, तो यू कैन सी के क्या था, कस्टमर नेम स्टिल एन ऑब्जेक्ट, और बहरहाल अब कस्टमर नेम ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही, लेकिन इनके अंदर अब मिसिंग वैल्यूज आ गई होंगी। ठीक है, जो दो वैल्यूज हमारी मिसिंग थी, जब आप फाइल को देखें तो कस्टमर नेम की पहली वैल्यू 25,000 है, और प्रोडक्ट नेम के अंदर भी जो है ना वो कुछ गड़बड़ आ रही है। ठीक है, सो बहरहाल सर हमने इसमें न्यूमेरिक वैल्यू एलिमिनेट की है। एलिमिनेट तो नहीं की हमने, उसको नल से रिप्लेस किया है। ये देखिए ना, ये यही कर रहा है ना कि अगर आपकी वैल्यू, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है जो इसको मैच नहीं करता, तो आप उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दें, यानी वही चीज वही लिखा रहने दें। बट इफ योर वैल्यू इज एन एरर, स्ट्रिंग कॉलम में न्यूमेरिक नंबर लिखा आ रहा है, तो अगर वो ये चीज आ रही है तो आप उसको नल से रिप्लेस कर दें। जो हमारी यही अप्रोच है कि इनकरेक्ट को नल से रिप्लेस करो, नल को फिर बाद में कैटर कर लो। तो फॉर एग्जांपल, सर अगर ये डेट लिखा हुआ आ रहा तो कस्टमर चल सॉरी, जाता।
क्या कह रहे हैं? डेट लिखी हुई आ रही थी कस्टमर उन वो नंबर भी की नल जगह से डेट रिप्लेस, आ रही होती कस्टमर अगर नेम की डेट जगह। लिखी आ रही है तो मुझे यहाँ पे फिर डेट का लिखना पड़ेगा ना, मुझे डेट का रेगुलर एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। इस केस में तो मुझे पता है कि वहां पर जो है नल नंबर लिखा रहा है, तो मैंने नंबर का फंक्शन बना लिया है। अगर कोई डेट का हो तो वो फिर आप वो डेट से रिप्लेस करते हैं उसको, ठीक है? अगर सर इसके मुझे पता ही नहीं हो, मैं मतलब इतना बड़ा डेटा है कि मैं उसकी एक्सेल नहीं देख रहा, तो उस सॉरी, सूरत में मैं चाहूँ ऐसा एक, अगर मुझे पता ही नहीं है कस्टमर नेम में, यानी कि मैंने देखा ही नहीं डेटा पीछे जाके एक्सेल में कि उसमें क्या आ रहा है, यानी कि डेट भी आ रही है कहीं पे नंबर भी आ रहा है, कहीं पे कुछ और आ रहा है, तो हाँ अब तो मैं चाह रहा उस, हूँ कि यार ये दोनों जी उसमें आपको ये करना उस सूरत में पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए आप? उसमें ये करना पड़ेगा कि आपको एक जेनरिक, यू हैव टू डिजाइन अ जेनरिक फंक्शन जो कि ये देखेगा कि अगर ये वैल्यू इस टाइप की नहीं है, ठीक है, वो एक सिंपल सा कोड है, अगर ये इसमें वैल्यू इस टाइप की नहीं है, इस टाइप को मैच नहीं कर रही, तो उसको नल से रिप्लेस कर दो। इफ इट इज नॉट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, उसके लिए आपको रेगुलर स्पेशल, यू डोंट नीड टू राइट अ रेगुलर स्पेशल, you just say कि return item if not of type object, sorry, if type object return item if not type object replaced by null value। ये सिंपल एक फंक्शन आपको ये बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन आप सारे कॉलम्स पे ओके लगा दें, तो हर कॉलम की जो बल्कि नहीं, पहले आपको तो टाइप कन्वर्ट करके देखनी पड़ेगी ना कि टाइप क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि किस कॉलम की कौन सी टाइप होनी चाहिए, ठीक है? और अगर वो टाइप पे मैच नहीं करता, एरर स्क्वायर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नल पे रिप्लेस कर देगा वैसे, ठीक है? ये बात भी है। व्हेन यू कन्वर्ट दैट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर नेम अगर मेरे पास इंटीजर आ रहा होता फॉर सम रीजन, और मैं उसको करता कि तुम कन्वर्ट दैट टू अ स्ट्रिंग, एरर्स इक्वल्स टू क्वेयर्स, तो वो सारे नंबर्स को जो है ना वो नल से ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देता। ये तो एरर्स इक्वल्स टू क्वेयर्स का एक बहुत आसान शॉर्टकट है जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहा है। ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं अलग से दिखा रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ये है, ठीक है? तो अगर आप करना चाहेंगे तो आप एक अलग से फंक्शन लिख लें जिसमें आप ये उसको कोई भी कॉलम देंगे और कहेंगे भाई तुम यू हैव टू बी अ डेट, ठीक है? तो अगर डेट में मैप नहीं करती कोई चीज तो आप उसको नल से रिप्लेस कर दें। आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, एरर्स इक्वल्स टू क्वेयर्स ना करें आप, अगर वो ना नहीं यूज करना चाहते। तो बहरहाल ये चीज करने के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे पास टोटल मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं। तो ये मेरे पास ऑर्डर आईडी में 545 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो क्या चक्कर हो रहा है कि ऑब्वियसली मुझे कुछ डेटा आइडेंटिफायर के तौर पे चाहिए होता है, तो आई चेक कि इनमें से यूनिकनेस है कि नहीं है, दोनों में चेक करता हूँ। आई ऑल्सो हैव ऑर्डर आईडी एंड रो आईडी। So when I check it here, तो order ID is not unique and contains 545 missing values. Obviously, I decided to remove this column क्योंकि इतनी ज़्यादा values मैं कैसे replace करूँगा, तो मैंने उसको अपने data frame से drop कर दिया और data frame update हो गया। रो ID के अंदर मेरे पास कोई missing value नहीं है, तो that remains as my primary key, ठीक है? और अब shipping date में मैं ये करता हूँ कि I have the shipping date, और I think shipping date मेरी convert हो चुकी है to this format। तो shipping date में मैं करता हूँ, मैं year निकालता हूँ, I find out the year, क्योंकि मैंने इनिशियल ब्राउजिंग में देखा है शिपिंग डेट में। देखें, एक काम जो आप लोग कर सकते हैं ना, वो एक्सेल में आप फिल्टर्स लगा के देख सकते हैं कि किस चीज़ की क्या क्या वैल्यूज जो है ना वो गड़बड़ हैं, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा उससे हो सकता है, ठीक है? देयर इज नो स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट। तो इसमें मुझे पता था कि शिपिंग डेट में ये गड़बड़ आ रही है कि वन ऑफ द ईयर्स इज वेरी लेस। तो मैं जब इसका हिस्टोग्राम बनाता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने उसको लैम्डा, दिस इज द लैम्डा फंक्शन, तो इससे मैंने उस डेट का ईयर निकाल के उसको इस कॉलम में डाल दिया। तो आई हैव अ लिस्ट बेसिकली। अब उसका मैं जब हिस्टोग्राम बनाता हूँ तो ये मुझे नजर आ रहा है कि जो मेरी जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादातर इज वेरिंग बिटवीन 2000 and 2020, but as this whole thing is being used shown, then that means कि something also is existing here जो कि मुझे हिस्टोग्राम में नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज हिस्टोग्राम मुझे 1900 से क्यों स्टार्ट करेगा? दैट डज नॉट मेक सेंस, ठीक है? तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि देयर इज सम प्रॉब्लम हियर कि कोई ऐसी वैल्यू आ गई है यहाँ पे 1900 के जुमरे में जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है?
तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि देन आई डिजाइन अ बॉक्स प्लॉट। तो मैं क्या करता हूँ, आई क्रिएट अ सेपरेट कॉलम जिसमें मैं एग्जैक्टली ईयर्स निकालता हूँ और फिर मैं उनका बॉक्स प्लॉट बनाता हूँ। तो बॉक्स प्लॉट में मुझे पता चला कि 1900 के ऊपर एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से ये पूरा बॉक्स प्लॉट जो है वो खराब हो रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी ह्यूज आउटलायर कि ये ऑब्वियसली एक डेटा एंट्री एरर है कि 1900 किसी ने डाल दिया है। बाकी सब चीजें तो हमारी सही लग रही हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरिंग हेयर एंड दिस वन इज बेसिकली द आउटलायर जो कि आपको डिलीट करना है। ठीक है, सही है, क्लियर है? ठीक है। तो सर हमारा आउटलायर ये दो डॉट्स है ना? अब दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट, मैंने यहाँ पे सिंबल ओ रखा है। ठीक है, जी तो जी। ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को वो ओ से कर रहा है। यू कैन आल्सो यूज अदर सिंबल्स, मुझे अभी याद नहीं है कौन से हैं। यू कैन सी दिस जो पेंडस बॉक्स प्लॉट को जब आप देखेंगे तो यू आपने कैन पहले सी, भी हमको करवाया। हाँ, तो यू कैन सी कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हैं। आई डोंट नो कि सिंबल कहाँ है इसके अंदर। बहरहाल फिर मैं ये जो नया कॉलम मैंने बनाया था इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि दो मेरी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि 1900 मैं सिर्फ वही रोज लेना चाहता हूँ जिसमें मेरी जो डेट है वो बेसिकली मैं उसको 1900 को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसका तरीका फिर ये है कि मैंने आई जस्ट यू नो सॉर्ट दिस आउट और फिर मैं इसको ये कर देता हूँ कि ऑर्डर डेट जो है अगर मिसिंग नहीं है, ऑर्डर डेट के अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो आप उसको छोड़ दें और अगर कोई वैल्यू 1900 या उससे कम है उसको छोड़ दें आप, बल्कि उसको ले लें आप। एक मिनट, ये क्या है, इज एनी कुछ, हाँ, जो ऑर्डर डेट में डेटा मिसिंग नहीं है उसको ले लें और जो डेट जो है वो 1900 से ऊपर की है उसको ले लें आप। ठीक है, तो ये 1900 का जो रो है ये फिर उसमें से डिलीट हो जाएगी। तो ये जब मैं ले लेता हूँ तो यू कैन दिस हैपेंस, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि लेट मी क्लियर आउटपुट। तो अब इफ आई डू द सेम थिंग अगेन, and obviously I have to do this also later on. हाँ, ये क्या हुआ? सर रिटर्न टाइप एक्सेस के बाद वो कॉलम बंद नहीं किया है ना आपने, पैरेंथेसिस। आपने एक्सेस के बीच में कॉमा नहीं डाला, हाँ, एक्सेस का कॉमा क्लोज नहीं किया। So you can see कि now things are here। अब ये 2022 भी एक गड़बड़ है, 2022 भी नहीं होना चाहिए। तो ये खैर मैं डिलीट करना भूल गया, तो ये आप लोग डिलीट करके इसको फिर द बॉक्स प्लॉट विल बिकम, उसकी अच्छी शेप आ जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी मेन यहाँ पर यही है। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको जब तक आप डिलीट कर दें तो वो आपका कॉलम डिलीट भी हो जाएगा। सो हाँ, फिर मैंने क्या किया है कि ड्रॉप कर दें उसको जो जहाँ पर शिपिंग डेट नल है और ऑर्डर डेट भी नल है। तो ये डॉट इंडेक्स उसका कर दिया मैंने कि वो उसको इंडेक्स के हिसाब से आप उसको ड्रॉप कर दें, उधर जाके रो वाइज आप उसको ड्रॉप कर दें। तो शिपिंग डेट नल, ऑर्डर डेट नल के बारे में हमने अब ये हमने कर लिया था ना। हमने शिपिंग डेट को नल में कन्वर्ट किया, जो उनके डेटा एंट्री एरर्स थे वो नल में कन्वर्ट हुए, ऑर्डर डेट के डेटा एंट्री एरर्स वो नल में कन्वर्ट हुए। और अब मैंने कहा कि जो नल वाली आप उनको ड्रॉप कर दें क्योंकि इस बारे में मैं कोई खातिर खा मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिससे मैं उनको रिप्लेस कर सकूं, तो आई चूज टू ड्रॉप देम। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर कुछ डेटा था, शिपिंग डेटा मैंने ड्रॉप कर दिया और रिमेनिंग रिकॉर्ड्स मिसिंग शिप डेट। हाँ जी, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है?
हम बेसिकली सर शिप डेट के अंदर ऑर्डर डेट की जो रिलेटेड वैल्यूज है फिल इन कर रहे हैं जहाँ पे नल वैल्यूज हैं। हाँ, लेकिन वो कैसे होंगी? इस कमांड के बाद तो कोई रहेगा उसके अंदर? हाँ, एंड सेल्स डीएफ ऑर्डर शिप डेट इज शिप नल, डेट तो ठीक है इस नल हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया ऊपर। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा नहीं नहीं, ये वो चीज़ है कि कुछ रोज ऐसी हैं जिसमें शिपिंग डेट ऑर्डर डेट दोनों इकट्ठी नल हैं। जी सही है, उनको तो आप ड्रॉप करते हैं क्योंकि जब मेरे पास दोनों का डेटा नहीं है मैं क्या अजम्पशन ले सकता हूँ। अब कुछ जी रोज मेरी बाकी बचती हैं जिसमें शिपिंग डेट मेरी शिपिंग डेट नल है लेकिन ऑर्डर डेट उनकी कोरिस्पॉन्डिंग नल नहीं है। तो वहां पे मैंने ये अपनी तरफ से अजम्पशन डाली है कि जो ऑर्डर डेट है वही शिपिंग डेट कर दो। जी कि बेसिकली मैं एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके बैठा हूँ कि हाँ यार, मैं एज्यूम करता हूँ कि उस दिन यही हुआ होगा कि जैसी ऑर्डर आया होगा उसी दिन निकल गया होगा। तो ये मैं अपने लिए एक पॉजिटिव एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, ऑल्दो ये झूठ भी हो सकता है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो कि मतलब वन वे ऑफ डूइंग दैट, और हो सकता है बात सही भी हो डिपेंडिंग कि आप क्या चीज़ भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये दो काम हमने किए हैं। जहाँ पे दोनों मिसिंग है वहां तो रोज को आप डिलीट कर दें, जहाँ पे सिर्फ शिपिंग डेट मिसिंग है वहां पे उसको ऑर्डर डेट से, तो ये क्या करेगा, ये फिल एनए करेगा, कॉरिस्पॉन्डिंग ऑर्डर डेट जो है उसी के हिसाब से वो शिपिंग डेट आ जाएगी। ठीक है, और इन प्लेस का मतलब है कि वहीं पे वहीं खड़े खड़े कर दें आप। तो ये हो गया। और देन वी हैव द ऑर्डर प्रायोरिटी। ऑर्डर प्रायोरिटी में अगर हमें नहीं पता तो मैंने एक कॉलम एक लेबल क्रिएट कर दिया नॉट स्पेसिफाइड, ये मेरा अपना डिसीजन है। ठीक है, और जब आप इसको व्हेन यू शो दिस थिंग ऑन द बीआई चार्ट, जब आप इस चीज को बीआई चार्ट पे दिखाते हैं तो फिर जो है वो यू कैन टेल द मैनेजर्स कि व्हाट डज इट मीन कि नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इसका मतलब ये, रादर देन कि वहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने उसको नॉट स्पेसिफाइड से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि आई कांट से एनीथिंग कि क्या प्रायोरिटी थी वो मिसिंग है। अच्छा, शिपिंग मोड की जब वैल्यू काउंट्स हम देखते हैं तो द मोड इज रेगुलर एयर, जैसा कि अभी बताया है। और तो शिपिंग मोड में अगर कोई मिसिंग वैल्यू आ रही है तो मैंने उसको रेगुलर एयर से मोड से रिप्लेस कर दिया है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दैट इज वन वे। अच्छा, अब दूसरा जो कहानी है वो रीजन प्रोविंस की है। अगर आप सेल्स का डेटा देखें तो यू कैन सी हेयर के आपका जो रीजन और प्रोविंस है वो आपस में उनका कुछ ऑब्वियसली एक मैच आ रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा वो लेट मी जस्ट दिस सीम्स टू बी लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इज इन द अटलांटिक रीजन, आप इसको इस तरह समझ लें। ब्रिटिश कोलंबिया इज इन द वेस्ट रीजन। ठीक है, और अगेन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट, ओंटारियो इज इन ओंटारियो रीजन, both of them are might be the same thing, जैसे नोवा स्कॉटिया इज इन अटलांटिक रीजन। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, तो आई कैन यूज दिस रिलेशनशिप टू फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। ये हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर अब पहले मैं मालूम करता हूँ कि आई थिंक आई डिड दिस यहाँ। तो रीजन्स में कुछ वैल्यूज मिसिंग है, वो तो हमने यहाँ देखा था कि आपकी यहाँ पे रीजन में 30 वैल्यूज मिसिंग है और प्रोविंस में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो प्रोविंस वैल्यू बनती है वो हम उससे रिप्लेस कर देंगे। तो उसका तरीका ये है कि यू फाइंड आउट द वैल्यू काउंट्स अकॉर्डिंग टू दिस वन, कि पहले मैं देखूं कि रीजन जहाँ पे मिसिंग है, जिन रोज में रीजन मिसिंग है उसमें प्रोविंस का वैल्यू काउंट क्या है। तो लेट्स सी दैट। तो रीजन जहाँ पे मिसिंग है वहाँ पे प्रोविंस सास्काचेवान 18 है, क्वेबेक 12 है। ठीक है, सो मिसिंग रीजन्स जो है ना वो बेसिकली दे बिलोंग टू द प्रोविंस ऑफ सास्काचेवान एंड क्वेबेक। ठीक है, अब हमने करना ये है कि हमने देखना ये है कि सास्काचेवान और क्वेबेक के रीजन्स कौन से थे, यानी बाकी रोज में देखें कि सास्काचेवान के साथ रीजन कौन सा आ रहा है और क्वेबेक के साथ रीजन कौन सा आ रहा है, उसको फिर यहाँ पे आकर रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे चेक किया है कि आप जब आपका प्रोविंस सास्काचेवान है तो उसका रीजन की वैल्यू काउंट्स लेकर आओ, और जब प्रोविंस क्यूबेक है तो उसमें रीजन की वैल्यू काउंट्स लेकर आओ। तो पता चला कि सास्काचेवान के साथ प्रायरी रीजन है और क्वेबेक प्रोविंस के साथ क्वेबेक रीजन है। तो दैट्स व्हाट आई एग्जैक्टली डू। यहाँ जो मेरी रीजन की 30 वैल्यूज मिसिंग है, अगर उसमें प्रोविंस सास्काचेवान होगा तो मैं उसको प्रायरी से रिप्लेस कर दूंगा, और अगर उसमें जो रीजन है वो क्वेबेक होगा तो मैं उसको क्वेबेक से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये काम किया है। ठीक है, कि आई क्रिएट अ कंडीशन व्हिच इज सिंपली a temporary variable sort of thing,
ठीक है, और उसमें मैं कंडीशन क्या डालता हूँ कि प्रोविंस सस्कचेवान है और आपका जो रीजन है उसका करस्पॉन्डिंग वो नल है, यानी आई टारगेट दैट एरिया जिसमें रीजन नहीं है और प्रोविंस सस्कचेवान है, और फिर मैं उसको क्या करता हूँ डॉट लॉक करके, लॉक का मतलब ये होता है कि वो कंडीशन पे रिप्लेस करता है, इफ इट इज आई लॉक तो वो इंडेक्स पे रिप्लेस करता है। अगर मैं आई लॉक करता हूँ तो मुझे इंडेक्स बताना पड़ेगा कि रो नंबर कौन सा है, बिकॉज एवरी डेटा फ्रेम हैज एन इंडेक्स। अगर मैं सिंपली लॉक करता हूँ तो आई कैन रिप्लेस दैट यूजिंग अ कंडीशन। तो मैं उसको कहता हूँ यार ये कंडीशन है तुम्हारी, ठीक है, और उसमें रीजन को तुम प्रायरी से रिप्लेस कर दो। कंडीशन क्या है कि वो रोज जिसमें रीजन की वैल्यू नहीं है और प्रोविंस सस्कचेवान है, तो वो 30 रोज उसमें ऐसा रीजन जो कि अवेलेबल नहीं है लेकिन प्रोविंस सस्कचेवान है वो निकाल के ले आओ, और उसको जो रीजन को फिर किससे रिप्लेस कर दो, प्रायरी से। फिर मैं दूसरी कंडीशन, बल्कि आई कैन यूज द सेम कंडीशन अगेन, क्योंकि मैं वेरिएबल को दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आई डू द सेम थिंग फॉर द क्वेबेक थिंग एज वेल, ठीक है, कि वो बाकी जो रिमेनिंग मिसिंग रीजन्स हैं जिसमें प्रोविंस जाहिर सी बात है क्वेबेक होगा, उनको सिलेक्ट करो और उसके ऊपर रीजन कॉलम के अंदर क्वेबेक डाल दो। तो दैट इज हाउ आई रिप्लेस बेसिकली दी। तो ये जो मेथड है ये आपके बड़े काम आता है, खासतौर पे जब आपके पास डायमेंशनल डेटा हो। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट नेम मिसिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरी मिसिंग है। अब जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी मिसिंग है तो प्रोडक्ट नेम से प्रोडक्ट कैटेगरी आप निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट सब कैटेगरी से प्रोडक्ट कैटेगरी निकाल सकते हैं, सही है। कस्टमर का सेगमेंट मिसिंग है तो कस्टमर के डेमोग्राफिक्स से कस्टमर का वो निकाल सकते हैं कि इस तरह के जो डेमोग्राफिक्स के जो बंदे हैं उनका आमतौर पे लेबल क्या होता है, वहां से आप निकाल लें अगर डेटा मिसिंग हो भी गया है तो, फॉर सम रीजन। अब इस केस में आपको डायरेक्टली मोड वोड से रिलेटेड नहीं, ये एक इंटेलिजेंट अप्रोच है जो कि बड़े आराम से चल जाएगी, तो वो आप चला लें, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कुछ कस्टमर्स का डेटा अगर अवेलेबल ही नहीं है, ये एक तो चीज ये है कि मिसिंग है, ठीक है, तो इवन if the customer data is not available, you can still make assumptions about the values and use them. समझ में आ रही बात की? Is it clear? अब इसमें होता है, इसमें आमतौर पे होता ये कि if I have the columns, if I have the columns here, तो उसमें I have this you know this data, और पिछले भी आगे भी कॉलम्स हैं, तो I make clusters, ठीक है। तो जो CRM हमारे टूल्स हैं, तो CRM टूल्स क्या करते हैं, दे क्रिएट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स। ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स या लेबल्स आप कह लें। So I can divide my customer data into different groups, and I can represent the group by some unique thing कि भाई ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप 2 है, ये मेरा ग्रुप 3 है। Okay, now a new customer comes in और उसकी मैं 10 चीजें रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन उसने मुझे सिर्फ 5 चीजें बताई हैं। I have 5 things which are missing from his data, लेकिन वो जो 5 चीजें हैं, उन 5 चीजों को जब मैं तीनों से कंपेयर करूंगा, आई विल गेट टू नो कि इस कस्टमर को मुझे किस ग्रुप में डालना चाहिए। तो आप कहेंगे कि आई थिंक यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस ग्रुप, सो यू बिलोंग टू दिस ग्रुप, एंड आई कैन मेक assumptions about you. So this is how it happens. मतलब ये चीज आप प्योर पाइथन में भी कर सकते हैं, ये चीज आप मशीन लर्निंग अनसुपरवाइज से भी कर सकते हैं, और ये चीज आप प्योर पाइथन में इस तरह के कोड लिख के भी कर सकते हैं जिस तरह का कोड आपके सामने लिखा हुआ है। कि फॉर एग्जांपल आई विल अप्रोक्सीमेट द कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर एज, बेस्ड ऑन देयर जेंडर एंड बेस्ड ऑन देयर टाइम, कि वो कितने अरसे से मेरे साथ है, दैट्स इट। So I can have an idea about them and I can form like 4 to 5 different groups। यार ये वो लोग हैं जो टीनेजर हैं और फीमेल्स हैं, ज्यादा देर हमारे साथ हैं, टीनेजर मेल्स हैं बहुत कम हमारे साथ हैं, एडल्ट फीमेल्स हैं हमारे साथ कम हैं, ओल्ड फीमेल्स हमारे पास ज्यादा हैं, ओल्ड मेल्स हैं हमारे पास कम हैं। तो ये इस तरह की बेस के ऊपर किसी भी नए कस्टमर का अगर आपके पास डेटा आता है, आप रैंगलिंग फेज में डिटरमिन कर सकते हैं कि ये बंदा किस किस्म का है, मेरी किस कैटेगरी के साथ चल रहा है। You can even determine that in the wrangling phase। समझ में आ रही बात की? तो कस्टमर सेंट्रिक होने का मतलब ये है
कि you discover things about your customers while wrangling. You don't not necessarily use a tool for that, because tool is also good, but it is very expensive. You can discover probably on your own by not spending any money at all, by using Python code. अगर आप इस तरह की बेसिक एक स्ट्रेटेजी बना लें और आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो कस्टमर आया है वो बेसिकली कहाँ लाइक करता है, और ये लोगों ने ऑलरेडी किया होता है। हर आदमी CRM टूल थोड़ी इस्तेमाल करता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग सिर्फ देखते हैं कि उसने हमें सेल कितनी दी है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर उसको गोल्ड कस्टमर या प्लैटिनम कस्टमर दे देते हैं। Although but you have to look at the demographics. डेमोग्राफिक्स के बगैर कस्टमर को एनालाइज सेल्स के हिसाब से करना, ये अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। यू हैव टू सी कि कौन सा ग्रुप आपको कितनी सेल्स दे रहा है, तो इसके लिए आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस रैंगलिंग फेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आज आपका फाइनल एग्जाम भी इंशाल्लाह उसके आसपास ही कहीं होवर करेगा, विल सी हाउ दैट हैपेंस, ठीक है। सही है जी, अभी तक कोई मसला तो नहीं है? सर फाइनल एग्जाम में आप जो भी हमने अभी तक पढ़ा है डेटा एनालिटिक्स में, वो हमको देंगे ना, केस देंगे हमको सॉल्व करने का? जी 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 बिल्कुल, सब कुछ आएगा उसमें। सर थोड़ा सा इनिशियली जो आपने स्टार्ट किया था मिसिंग वैल्यूज में, जो स्टार्ट का वो था जिसमें हम उसको दिखा रहे थे, ईयर की बात कर रहे थे इस कॉलम में, कि हमारा ड्रॉप ईयर जो सेज शिप डेट ईयर वाला था, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, वो थोड़ा सा मुझसे मिस हुआ है। असल में अभी फिर थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, चले मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। देखिए हमारी यहाँ पर सिंपली एक बेसिक बात चल रही थी कि हमारे पास शिपिंग डेट के कॉलम में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो डेट्स नहीं हैं, उनको हम कहते हैं डेटा एंट्री एरर्स, ठीक है। और उसका अप्रोच हमने ये रखी है कि वो डिटेक्ट दोज वैल्यूज एंड कन्वर्ट देम टू नल वैल्यूज। तो पाइथन में हम नेट में कन्वर्ट कर देंगे, पैंडास में, और फिर हम नल वैल्यूज के साथ जो करना चाहे करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम नीचे जाके उनको डिलीट कर दिया उन रोज को, लेकिन मैं उनको जब तक मैं उन वैल्यूज को यहाँ से कन्वर्ट नहीं करूंगा नल में, तो आई कांट मैप द होल कॉलम टू अ डेट फॉर्मेट। मुझे तो डेट में फॉर्मेट चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो उसको एनालाइज करना है। आई कांट डू दैट। तो देयरफॉर दिस इज द थिंग कि बेसिकली इसको आपको जनरलाइज करके एक टेम्पलेट क्रिएट करना होगा, जिस टेम्पलेट में ये है कि आपने बेसिकली ये करना है कि जो किसी भी कॉलम में ऐसी वैल्यू हो जो उस टाइप के साथ मैच नहीं करती, वो वैल्यू नल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और फंक्शन में आप मिसिंग वैल्यू से डील कर लें। यू हैव टू, मतलब आइडियल तरीका, ये अमार इस बात को शायद समझेंगे ज्यादा, आइडियल तरीका काम करने का ये होगा कि अगर कोई डेटा एंट्री एरर्स हैं तो डेटा एंट्री एरर्स को डिटेक्ट करके उनको नल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय द कॉल ऑफ सिंपली वन फंक्शन। एक फंक्शन ऐसा डिजाइन कर लें कि भाई लाओ, मुझे पता है कि मेरे कॉलम्स की क्या क्या टाइप्स होनी चाहिए, मैं वो टाइप बताऊं, उसके हिसाब से मैं मैपिंग फंक्शन लिखूं और एरर्स को क्वेरीज कर दूं, तो वो सारी की सारी जो डेटा एंट्री एरर्स हैं वो सारी की सारी नल में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप अगले सेल में आके नल वैल्यू से डील कर लें, खत्म। तो ये चीजें थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, आपको वो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जिसकी बेस पे आप ये काम कर सकते हैं। मुझे इस चीज का टाइम नहीं मिलता, तो और असल में बात ये भी होती है कि फंक्शंस को बनाना थोड़ा सा एकदम से 20 फंक्शंस के ऊपर एक फंक्शन लगा देना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ अच्छी अप्रोच शायद नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको अलग अलग, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, राइट। आप इसको एक हफ्ते में बहुत सारा अच्छे तरीके से रैंगलिंग की पूरी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं अपनी कंपनी को। एक हफ्ता काफी है अगर आपको काम आता है। तो इस केस में मेरा नजरिया ये कि हर कॉलम को अलग अलग डील करें तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको श्योर है कि यार मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डेटा एंट्री एरर्स हैं, देन यू कैन हैव वन फंक्शन जो डील करते हैं। अच्छा, जो ETL के टूल्स होते हैं, जैसे ETL के जो टूल्स ऑनलाइन आपको अगर कोई मिलता है, तो दे माइट बी हैविंग सच अ फंक्शन इन प्लेस कि वो आपको एक जस्ट विद अ सिंगल क्लिक दे विल टेल यू कि आपके डेटा एंट्री एरर्स कौन कौन से हैं, और या उनको हाईलाइट करके बता देंगे कि दिस थिंग डज नॉट मैच इट, या अगर वो खुद ही उसको रिप्लेस करते हैं तो वो आपको बता देंगे यार हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ETL के जो टूल्स होते हैं वो अब आजकल काफी ज्यादा टूल्स आ रहे हैं ऑनलाइन, तो दे विल हेल्प यू डू दैट। बेसिकली दे विल
मतलब वो आपकी टेंशन को खत्म कर देंगे। मुझे अभी नाम उनका भूल रहा है, मैं आपको लेट मी राइट दैट डाउन, तो अगली सेशन में मैं बताऊंगा, दैट माइट बी वेरी यूजफुल फॉर यू। नाम उनका भूल रहा है अभी, लेट मी राइट दैट डाउन हियर, सॉरी अबाउट दैट। ETL टूल्स आजकल, इनफैक्ट आजकल जो चीज आ रही है ना, वो एक और चीज आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड ऑटो ETL। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? Automatic ETL? या No, this is the first time I'm hearing about it. this is becoming very famous these days and you need to dig up बल्कि इनफैक्ट एक ठहरे, मैं just let me run one query. I did search this up a long time back, or maybe just several months back. No, I don't think so. Okay, they're here. चलिए मैं आपको बताऊंगा, ये इसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहे वो ETL automation. Click is offering that, but I'm not really sure. नहीं, top 7 में तो वो नहीं होंगे। That's a very बहुत जबरदस्त टूल्स हैं वो। मुझे एक उनमें से ऐसा है जो कि आप कर सकते हैं, but I can't figure that out. ये देखें ना, ये all of these things you can see के is a cloud-based ETL solution providing simple visualized data pipelines. अब ये you can design such a flow. ये जो हम Python में पूरा काम करें ना, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सब काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस इसमें वो ये है कि they do not contain everything that you might want at that time. For someone who is a very core data scientist, उसके लिए ये चीज थोड़ी सी लिमिटिंग भी हो सकती है। ये मेरा अपना जाती ख्याल है, देयरफॉर मैं आपको ये कहूंगा कि आप उसी से डील करें। नहीं, दे डोंट, यहाँ पे वो नाम नहीं आ रहा उसका, स्प्रिंकल, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम यार। इट्स अ वेरी गुड टूल, इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर, Oracle Data Integrator, SSIS, Ab Initio, I think this is one of them. हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त टूल है, टैलेंट ओपन स्टूडियो फॉर डेटा इंटीग्रेशन। यू माइट ट्राई दैट आउट, इसको डाउनलोड कर लें, ये फ्री है। क्लोवर वाला भी अच्छा है। Pentaho is a very old name in this ETL and BI. It's not actually a BI tool, but it's more or less a warehousing and this sort of thing. अब ये देख रहे हैं आप, month year page, month mapper, row denomizer, centros here, ये पूरा प्रोसेस अलग चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस अलग चल रहा है। This is like blending Hadoop and Mongo together. Apache Nifi, ये तो पूरा open source है. You can design the whole workflow in this on Python, in fact. SAS का data integration studio, that's also very famous. SAP का business, ये देखें ये सारी चीजें, although this is not an ETL thing. Oracle warehouse builder ये तो पुराना है, तो इतना मजे का नहीं था। Sybase ETL, Jasper तो बहुत पुरानी चीज है। नहीं, वो अभी मुझे वो चीज मिल नहीं रही। मैं आपको I will tell this to you in the second session, ठीक है? So where were we? ये जो डेफिनेटली आपको ये चीजें जरा देखनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में some of you might not be motivated to try out the code. Amar might be motivated to do that, but not all of you. तो उसमें फिर पर्सन लाइक अमार और मे बी समवन एल्स एज वेल, वो अपनी पूरी टेम्पलेट्स बना लें तो वो ज्यादा बेहतर है। जस्ट मेक अ होल टेम्पलेट ऑफ डेटा रैंगलिंग, कि मुझे डेटा रैंगलिंग का एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट बनाना है जो कि मैं हर डेटा सेट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। और बाकी जो लोग हैं वो दे कैन गो फॉर सम टूल जो कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें क्लीन करके दे, क्योंकि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी टेंशन यही है जो आपके सामने नजर आ रही है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप प्रेडिक्शन जनरेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस टाइम ये सारा काम नहीं करेंगे तो आपकी प्रेडिक्शंस की गारंटी मेरे नजरिए में तो नहीं है, ठीक है? तो यू हैव टू क्लीन योर डेटा योरसेल्फ, दैट्स द थिंग। यू हैव टू नो कि मैंने डेटा को कैसे साफ किया है, ताकि फिर आप उसको आगे मशीन लर्निंग में या BI में या जिसमें चाहे इस्तेमाल कर सकें।
तो अच्छा, अभी भी हमारे पास कुछ एरर्स बाकी हैं। ऑर्डर क्वांटिटी में 4 एरर्स बाकी हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी में। तो इफ आई लुक एट द प्रोडक्ट कैटेगरी, again I can see के let me see if there is a relationship between product category and sub category. तो obviously we can expect कि product category जो है वो मुझे 3 किस्म की नजर आ रही है, मुझे जहां तक याद आता है, furniture, office supplies, technology. So I can see these 3, right? और it is logical to assume कि there is a relationship between category and sub category, क्योंकि आपने hierarchy तो पढ़ी होगी। जी अमर, यस सर, आप यस लोगों ने सर। हायरार्की तो पढ़ी है ना बीआई में? यस सर। तो हायरार्की, प्रोडक्ट हायरार्की तो पता है ना? ये प्रोडक्ट हायरार्की पता है सर। हाँ, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी, प्रोडक्ट की सब सब कैटेगरी, और फिर प्रोडक्ट का नेम। दैट्स वन पॉसिबल हायरार्की जो कि हो सकती है। और हायरार्की क्या होती है? ईयर, क्वार्टर, मंथ, डेट मंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यू कैन आल्सो मेक अ कस्टमर हायरार्की। अगर आपको वो हायरार्की बनती है तो यू कैन मेक दैट हायरार्की। तो हायरार्की सर, जी सर आपने जो वो बताया था ना एयरबीएनबी वाली फाइल जब कराई थी, जी तो उसके अंदर आपने फॉर लूप लगाया था इसी तरह के सब कैटेगरी वाले डेटा को साफ करने के लिए। जी हाँ, तो तो सर उसमें मैंने उसी से सर मैंने टेम्पलेट एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जो 3 अदद कॉलम्स हैं वो साफ मतलब सही हो रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। देखें, एक ही काम को करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है? तो हाँ अच्छी बात है। तो वहां मैंने ये किया होगा, यहाँ मैंने ये कर लिया है। तो बहरहाल ये हाँ, यहाँ अगेन पे आई डू द मुख्तलिफ सेम तरीके थिंग से। के जो प्रोडक्ट कैटेगरी जो मेरी यहाँ पे कहाँ आ रही है, 31 नल वैल्यूज हैं। पहले मैंने उनकी लिस्ट निकाली है विद द सेम वे। एक मैंने उसको एक लिस्ट बना ली उसकी, ठीक है? तो ये मेरी वो इन दैट फॉर्मेट कि इन प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए मेरे पास सब कैटेगरी, सॉरी, इन सब कैटेगरीज के लिए मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी मिसिंग है, ठीक है? ये सब कैटेगरीज हैं। तो देन आई मेक अ फंक्शन, और फिर उसमें मैं क्या करूँ, ये बताएगा कौन इस फंक्शन में क्या हो रहा है? जी भाई, ये कंडीशन में क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी बताएं, शाबाश। सर ये बता रही है कि जहाँ पे ये नल है और जहाँ जहाँ पे आप आइटम डालोगे और जहाँ पे नल है वहां पे एक खास काम करेगा। हाँ, ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन में मैं एक आइटम पास कर रहा हूँ। तो वो कंडीशन क्या कह रही है कि सब कैटेगरी वो आइटम है, जैसे पेपर, और उसके एवज में ये नल होना चाहिए जो कि मैंने रिप्लेस करना है, ठीक है? फिर मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं उसको इस कंडीशन के ऊपर, मैं जो पहली रो आती है उस इंडेक्स की, उसको मैं उसका मैं सॉरी, जो इस कंडीशन के ऊपर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी निकाल लेता हूँ, ठीक है? प्रोडक्ट कैटेगरी को मैं निकाल लेता हूँ कि प्रोडक्ट कैटेगरी का जो वो है वो मैं इस वेरिएबल में डाल देता हूँ, ठीक है? फिर मैं कंडीशन टू रिप्लेस एक निकालता हूँ कि जिसके अंदर ऑब्वियसली प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी नल है और जो सब कैटेगरी है वो ये है, और फिर उसको मैं लॉक करके मैं उस कंडीशन से रिप्लेस किया। मैंने थोड़ा सा लंबा यहाँ पे चक्कर डाल दिया है, लेकिन दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन बेसिकली ये काम वही कर रहा है जो ऊपर वाला फंक्शन कर रहा है, ठीक है? और फिर मैंने एक फॉर लूप लगा के इस सब के ऊपर ये काम किया है, ठीक है? एक एक करके दिया है। जैसे मैंने पहले इसको पेपर मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा कि जिन जिन रोज में पेपर है और वो मिसिंग है, ये हमारी कंडीशन है। तो कंडीशन मैंने इसके ऊपर लगाई और उन बेसिकली रोज को निकाल के इसमें डाल दिया। जिन जिन जिस जिन रोज पे ये कंडीशन ट्रू है, उन रोज को निकाल के मैंने इस वेरिएबल में डाल दी। ये सारी रोज इसमें आ गई, डेटा फ्रेम बन जाएगा बेसिकली, ठीक है? और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वो ऊपर वाला काम किया कि जहाँ पे जी ये वो है, जहाँ पे ये वो चीज़ है, ठीक है? कंडीशन टू रिप्लेस, और फिर मैंने उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट कैटेगरी को रिजल्ट कैटेगरी के साथ रिप्लेस कर दिया। अरे अरे नहीं, एक मिनट ठहरे ठहरे, ये मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। मेरी रिजल्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए? मेरा मिसिंग क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी मिसिंग है, और जहाँ मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी मिसिंग है, हाँ ठीक है, सही है सही है। मैंने ये किया है कि जब मुझे पेपर पास हुआ
तो पेपर के इवज में मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या बनती है वो मुझे यहाँ पर मिल गई। एक पेपर के लिए मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है वो मुझे इस लाइन ऑफ कोड से मिली है। ठीक है, एक पेपर के प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, और फिर बाद में मैंने उसको उसी वैल्यू से मैंने रिप्लेस कर दिया है जहां पर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि जहां पर मेरी कैटेगरी वो वाइट पेपर है लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी मिसिंग है, वो मैंने यहाँ पर वो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इज नल इक्वल्स टू फॉल्स। ये मैं आपको गलती कर गया बताने में। ये चीज वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये चीज ये है, जब मैंने उसको पेपर दिया तो मैं कह रहा हूँ कंडीशन बनाओ जिसमें सब कैटेगरी पेपर हो, जो कि मेरे पास है, और प्रोडक्ट कैटेगरी नल ना हो। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि पेपर के लिए कैटेगरी क्या होती है। सही है, समझ में आ गई बात की? जी जी। उन रोज को देखो जिसमें पेपर है और कैटेगरी नल नहीं है, और उनसे फिर कैटेगरी पहली रो में जो कैटेगरी लिखी है वो निकालो, कैटेगरी तो सेम होगी, तमाम पेपर्स की कैटेगरी तो सेम होगी ना। तो वो कैटेगरी से निकाल के यहाँ पे इसमें स्टोर कर लो, और फिर बाद में वही काम करो जो हमने ऊपर किया है। हमने ऊपर क्या किया था, कंडीशन बनाई कि हाँ यार वो रोज निकालो जिसमें कैटेगरी मिसिंग है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी पेपर है, और उन रोज को फिर इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो। ये सिर्फ ऊपर जो हमने काम किया ये उसका हमने पहले एक अलग से चीज करके देखी थी, यहाँ पे हमने उसको डायरेक्टली करके दिखा दिया है। सही है, ये क्लियर हुई है बात? जी। लेकिन सर हम यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी के नल वैल्यूज रिप्लेस करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी के हैं? प्रोडक्ट कैटेगरी देखिए ना, सब कैटेगरी तो मिसिंग है ही नहीं, हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी कैटेगरी इज है। द वैल्यू मिसिंग। ठीक है, सही है। तो अप्रोच ये होगी कि इनमें से हर एक के लिए मैं जाके देखूंगा कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या बनती है, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, और फिर उसको लेकर मैं फिर पुराने वाली मेथड को अप्लाई करके उस नल वैल्यू को जाकर रिप्लेस कर दूंगा, खत्म। जी जी। सही है, तो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं दोबारा देखता हूँ तो आई कैन सी के प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो 0 हो चुकी है, सब कैटेगरी भी 0 थी। अब मेरे पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट कंटेनर क्या चीज है? अच्छा, यानी मीडियम बॉक्स है या लार्ज बॉक्स है, तो ये तो हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं मोड से। इसको ठहरे, मैं इसको आई डोंट वांट। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या आ रहा है मेरे भाई, स्मॉल बॉक्स। प्रोडक्ट कंटेनर में आई हैव 15 मिसिंग वैल्यूज। सर और यहाँ पर अप्रोच क्या लगाई है हमने कि या ओके ओके ओके, तो फर्स्ट आई फाइंड आउट के व्हाट इज द कैटेगरी जहाँ पर प्रोडक्ट कंटेनर की वैल्यू मिसिंग है। तो फॉर दीज 15 rows I have the value of container as missing. तो ऑफिस सप्लाईज की आम तौर के ऊपर क्या है, has small box as their container while jumbo box has as their container। जंबो बॉक्स के लिए जंबो बॉक्स है, फर्नीचर जो है वो आमतौर पे जंबो बॉक्स में जा रहा है, और बाकी ऑफिस सप्लाईज जो हैं वो स्मॉल बॉक्स में जा रही हैं। तो यही स्ट्रेटजी को अप्लाई करके हमने यहाँ पर ये काम किया है कि जहाँ पर ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी हो और कंटेनर मिसिंग है तो वहाँ पे कंटेनर स्मॉल बॉक्स कर दो, और जहाँ पर फर्नीचर हो तो वहाँ पर कंटेनर को जंबो बॉक्स कर दो। सही है, अब ये चीज़ हमने कहाँ से निकाली है, ये कोई पीस ऑफ कोड होगा जो अभी मिसिंग है यहाँ पर। आप इसका कोई बार प्लॉट वगैरह बना के भी देख सकते हैं, आप इसको वहां से भी चेक कर सकते हैं, आप लॉजिकली भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन के थ्रू भी आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि ये किस तरह होगा। सही है, तो अगर मैं उसको इफ आई सी दैट इन द फाइल, तो या तो जो ऑफिस सप्लाईज वगैरह स्मॉल बॉक्स हैं, और टिपिकली जो फर्नीचर है वो लार्ज बॉक्स है या जंबो ड्रम है, तो देयर आर अदर थिंग्स। सर आपने जो इससे पहले एक बार रिपीट की थी मुझे थोड़ा क्लैरिटी दे देंगे उस पे कि प्रोडक्ट नेम वाला जो बताया था आप, उसके जो 2 वेज आपने लिखे थे,
on this that box. Can पहले. we take a small break, like 5 minutes? Yes, sir. 10 minutes if possible. 10 minutes. Yes, sir, ठीक है. 10 minutes. Yeah.